Good morning, all of you, and Assalamu alaikum. I am Divazara, student of grade 6. We are student of Exit Academy, Gilgit. Our school is organized Science Expo 2010. For this exhibition, we are selecting different models for pollution. You know, pollution is a process which is hazardous for human health. There are four main types of pollution: air pollution, land pollution, water pollution, and noise pollution. First of all, I want to tell about air pollution. Hazardous gases emitted from factory chimneys and vehicles cause air pollution. Our air become harmful for us. Lungs, cancer, eyes problem, tension, and mental stress are some common problems of air pollution. CO2, CFC, methane, and other hazardous gases are provide greenhouse effect. This is also called global warming. Thank you for listening to me. My name is Mana, student of grade 6. Today I am tell about land pollution. Pollution of soil caused by waste and harmful chemicals. Causes littering pesticides and industrial waste. Affect loss of fertile soil, polluted water, health problems. Thank you for listening to me. My name is Farhad Sakin. I am student of grade 6. I want to elaborate about water pollution. Mixing of unwanted chemical and substance to water body cause water pollution. That can contaminate water is harmful for human and animal life. The water become polluted from industrial waste, sewage, oil spill, and plastic production. There are several impacts of water pollution like health hazard, ecosystem damage, economic and social impact on well. Thank you. And Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to explore an important topic in English grammar called tenses. Trying to tell a story without being able to express the event that happened, that's confusing, right? So that's why tenses become so important. Tenses help us to talk about past, describe present, and plan for the future. They are the time machine of a language, and today we will show you how they work. First, past. It talks about the action that happening before now. Next, present. It talk about the action that's happening now. And last, future. It talk about the action that's happen later. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asad Ruhullah. I am student of grade 6 and today I am in front of you to present a short presentation on the topic of human digestive system. First of all, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिले हुए होते हैं और वो सब ऑर्गन काम करते हुए बैठते हैं। और जो पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पाइप है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और ये पाइप माउथ से शुरू होती है और एनस में एंड होती है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिले हुए होते हैं। तो आइए मैं आपको उनके फंक्शन और कुछ नाम वगैरह बताता हूँ। सबसे पहले है माउथ। जब हम पानी पीते हैं तो वो माउथ और एसोफेगस के जरिए स्टोमक में जाता है। स्टोमक में वो जज़्ब होता है, जो बच गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जज़्ब होता है, जो बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाता है, उधर भी जज़्ब होता है। फिर रेक्टम में टेम्परेली स्टोर हो जाता है, फिर इनस के जरिए रिमूव हो जाता है। थैंक यू। ये हमारा मैदा पत्थर जैसे अगर हम कुछ खाए तो ये हमारा मैदा हजम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि ये पत्थर जैसे सख्त चीज को हजम करे। समटाइम सख्त चीज इंसान क्या खाता है? हाँ सर, वो मैदे के अंदर कुछ केमिकल्स सेल उसके जरिए वो हजम होते हैं सर। जैसे अगर सख्त रोटी वगैरह। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों हम जो मशरूबात पीते हैं दुकानों के, ये नहीं पीना चाहिए, ये मैदे को खराब करते हैं। और जो हम चावल वगैरह खाते हैं इनको नहीं खाना चाहिए, गंदम की रोटी वगैरह खाना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद मिनहास है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में एग्जीबिशन कराया था, इसलिए हमें ये मॉडल दिया है वाटर प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले हम वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हमें नेचुरल मटेरियल से ही मदद करते हैं। सबसे पहले हमने बड़े पत्थर डाले हैं, फिर छोटे पत्थर डाले हैं, फिर मिट्टी डाली है, फिर कोयला डाला है, फिर वो कॉटन डाला है। इसे अभी आपको दिखाता हूँ, ये गंदा पानी है, अभी वाटर को प्यूरिफिकेशन करके आते हैं।
अभी ये ऐसे बड़े जम्स होते हैं, वो पत्थर से एब्जॉर्ब करते हैं और साफ पानी करते हैं। और ये कॉटन है, वो छोटे जम्स को, छोटे लकड़ियाँ, छोटे गंदे पत्थर वो एब्जॉर्ब करती है और साफ पानी करती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज अचल फातिमा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th एंड आज हम लोगों ने एक मॉडल बनाया फूड चेन ऐसा एक चेन है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह। सबसे पहले है प्रोड्यूसर यानी प्लांट सनलाइट को यूज करके अपना फूड खुद बनाता है। और इसके बाद है हार्बीवर्स हर्ब्स को खाने वाले होते हैं और ये प्लांट को खा के अपना फूड हासिल करते हैं। हमारे पास आता है कार्निवर्स वो एनिमल है जो गोश्त को खाने वाले एनिमल, जैसे कि हार्बीवर्स को खाने वाले एनिमल। उसके बाद हमारे पास डिकम्पोजर आता है। डिकम्पोजर वो एनिमल है जो डेड बॉडीज को खाने वाले एनिमल होते हैं। ये हमारे पास ये सारा मिलकर फूड चेन कहलाता है। माय नेम इज निहाल हैदर। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। आज हम जो डिफरेंट हैबिटेट्स लाए वो है, मेरा जो टॉपिक है वो है मेरीन इकोसिस्टम। मेरीन इकोसिस्टम जो ऐसा पानी है जो साल्ट से भरा होता है और नमकीन होता है। मेरीन इकोसिस्टम के अंदर बहुत से फिशेस, स्नेक्स और डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये मेरीन इसलिए होता है कि जो पानी के अंदर जो साल्ट के कान होते हैं उनसे जो जब पानी गुजरता है तो वो नमकीन बन जाता है। और इसके अंदर ग्रासेस भी होते हैं और ये फिशेस, डॉल्फिन्स और स्नेक्स खा के जिंदा रहते हैं। हैबिटेट्स नहीं होंगे तो जानवर, इंसान मर जाएंगे। जो प्लांट होते हैं अगर हम उनको नहीं काटे तो हम जिंदा रह सकते हैं। और जो प्लांट के जो ऊपर होते हैं वो वहाँ परिंदों की मस्कन होती है और उनको अगर नहीं काटे तो हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हम उनको काटे तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जियोबोट बनाया है। जियोबोट पैरामीटर एंड एरिया को फाइंड करता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? इससे पैरामीटर एंड एरिया फाइंड करता है। ये This is our model. We introduce part of speech. Part of speech are tool in a toolbox. There are 8 main parts: noun, pronoun, adverb, verb, conjunction, preposition, interjection. First is noun. Noun is the name of person, place, thing. Second is verb. Verb is an action word. And third is adjective. Adjective, a word that modify or noun and pronoun. It can improve our communication skills and it can complete our idea or sense. Important to complete our sentence. Example, we will do a model. This is a sentence. Today I am here to share about an important topic in English grammar, types of verb. In this presentation we will explore the 6 categories of verb. First one is का टाइम नहीं है मेरे पास। यस, थैंक यू। इतना आपका क्या है? ये हो गया बस। सर इसका बोला ही नहीं है। आप अच्छा, ये थोड़ा सा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्यों बना है? आप देखते नमक क्यों क्या है? क्योंकि इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होता है कि हम कोई प्रैक्टिकल देखते हैं तो सही से समझ आते हैं। इस तरह से झूठ बोलते हैं आप। लगाओ बेटा। अच्छा, आपका क्या है? एग्जीबिशन के ऊपर बताओ। ठीक है, यहाँ पे हमने इंग्लिश बनाया। हाँ, उर्दू में हमारा इंग्लिश सब यू कैन टॉक इन इंग्लिश। रुको सर, ओवरऑल बताओ। मैं अपने इसके बारे में बताओ। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन रजा है और मैं आज एक वोल्केनिक इरप्शन का एक मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
इसका मकसद ये होता है इसका बनाने का, यानी ये एक माउंटेन होता है जो ज़मीन के नीचे इरप्ट होता है। ये एक मेल्टेड रॉक होता है जो जिसे मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा जब इससे वोल्केनो से बाहर आता है, इरप्ट होके बाहर आता है, तो इसे हम लावा कहते हैं। उससे नई ज़मीनें बनती हैं और जो ऐश होता है उससे ज़मीनें ज़रखेज़ होती हैं। और लेकिन ये इरप्ट होता है तो इंसानों को खतरा भी होता है, इससे डेंजरस है।